علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے کورس نفع بخش زرعی کاروبار کے 4 پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف زرعی مہارتیں بتائی گئی ہیں، مثلا مگزبانی، ریشم سازی، ماہی پروری اور شجرکاری، جبکہ 5واں اور آخری پروگرام کھمبی یا مشروم کی کاشت کے بارے میں ہے۔ کھمبی ایک نفع بخش گھریلو صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی کاشت گھر کے اندر کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس کو اپنا کر دیہی آبادی خصوصاً خواتین کو گھریلو روزگار مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار بڑھا کر ہمارا ملک ایک قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو کھمبی کے فوائد، غذائی اہمیت اور اس کی کاشت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ انسانی زندگی میں نباتات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ویسے تو نباتات کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کھمبی ان میں وہ قسم ہے جسے فنگس یا پھپھوندی کہا جاتا ہے۔ کھمبی کو جاننے کے لیے سینئر سائنٹیفک آفیسر شیخ محمد اقبال بتاتے ہیں۔ کھمبیاں یا مشروم دراصل پودے ہیں۔ ان میں اور دوسرے پودوں میں واضح فرق یہ ہے کہ ان میں کلوروفل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ سورج کی روشنی میں اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتی۔ انہیں اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے یا تو دوسرے پودوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے یا پھر یہ بیکار زرعی اشیاء مثلاً مکئی کے تکے، توڑی، پرالی یا کچرا وغیرہ پہ اگتی ہیں۔ یوں تو کھمبیوں کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں 3 قسمیں ہیں جو اگائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک بٹن یا یورپی کھمبی ہے، دوسری آئسٹر یا صدف نما کھمبی ہے، تیسری چائنیز مشروم ہے۔ آئسٹر اور بٹن موسم سرما میں اگتی ہے، جبکہ چینی مشروم جو ہے وہ ہم موسم گرما میں اگاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں مطلوبہ موسمی حالات دے دیں تو یہ کھمبیاں سارا سال اگائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، کھمبی عام زمین میں نہیں اگتی، بلکہ یہ گلی سڑی چیزوں پر اگتی ہے۔ کسی بھی فصل کی کاشت کے لیے اس کی بنیادی ضرورت زمین ہوتی ہے، لیکن کھمبی کی کاشت کے لیے ایک مصنوعی کھیت کی ضرورت ہوتی ہے، جسے سائنسی زبان میں کمپوسٹ کہتے ہیں، اور یہی وہ کردار ادا کرتی ہے جس طرح دوسری فصلوں کے لیے عام زمین۔ جہاں تک کھمبی کے مصنوعی کھیت یا کمپوسٹ کا تعلق ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ کمپوسٹ بنانے کے لیے مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 ٹن کمپوسٹ بنانے کے لیے 300 کلو گرام خشک مواد کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ان اجزاء کو ایک خاص تناسب سے ملایا جاتا ہے، یعنی گندم کا بھوسا 200 کلو گرام، مرغی خانے کی کھاد 75 کلو گرام، جپسم 20 کلو گرام اور یوریا 5 کلو گرام، جبکہ پانی کا تناسب 60 سے 65% تک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پکے فرش پر بھوسا بچھایا جاتا ہے اور اس میں باری باری یہ اجزاء ملائے جاتے ہیں اور وقفے وقفے سے پانی چھڑکتے رہتے ہیں، اور ہر 5 دن کے بعد اس ڈھیر کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح گل سڑ جائیں۔ یہ عمل 20 سے 25 دنوں تک کیا جاتا ہے اور ایک خاص طرح کا ڈھیر بنا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کمپوسٹ تیار ہو گیا ہے اور اس کی رنگت بھی تبدیل ہو چکی ہے، یعنی سیاہی مائل ہو گئی ہے اور یہ بیج ملانے کے قابل ہو چکا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کھمبی کے کاشت کے لیے اس تیار شدہ کمپوسٹ کو پولیتھین کے تھیلوں میں بھر لیا جاتا ہے، جبکہ بڑے پیمانے پر کمروں میں اینگل آئرن یا سیمنٹ سے بنے ہوئے شیلفوں میں بھر دیا جاتا ہے، جن کو بیڈز کہتے ہیں، اور یہی وہ کھیت ہیں جہاں کھمبی اگائی جاتی ہے۔ کھمبی کے بیج ملانے سے پہلے کمپوسٹ کو کیڑوں اور جراثیم سے پاک کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپوسٹ سے بھرے تھیلوں کو ایک ڈرم میں رکھا جا رہا ہے اور بھاپ کے ذریعے جراثیم ختم کیے جا رہے ہیں۔
इस अमल को स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठंडा होने पर इन थैलों को निकाल लिया जाता है। इसी तरह शेल्फों में भरे हुए कंपोस्ट को स्टीम के जरिए स्टरलाइज किया जाता है और कंपोस्ट में मौजूद जरासीम खत्म हो जाते हैं। जरासीम से पाक करने के अमल के दौरान दर्जा हरारत 65 से 70 सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसके बाद कमरे का दर्जा हरारत कम किया जाता है ताकि कंपोस्ट ठंडी हो जाए और इसमें बीज काश्त किए जा सकें। नाजरीन, किसी भी फसल की काश्त के लिए बीज इसकी बुनियादी ज़रूरत है। दूसरी फसलों की निस्बत खुम्बी का बीज मुख्तलिफ होता है। अब खुम्बी का बीज हासिल करने के मराहिल देखते हैं। मशरूम या खुम्बी की काश्त में सबसे अहम और बुनियादी चीज़ इसका बीज है, जिसे टेक्निकली स्पॉन कहा जाता है। पाकिस्तान में मशरूम की काश्त में सबसे बड़ी रुकावट इसके बीज या स्पॉन की अदम दस्तयाबी है। सिरेदस्त पाकिस्तान के तमाम काश्तकारान ये बीज इंग्लैंड, हॉलैंड या अमेरिका से मंगवाते हैं। ताहम एक अच्छी लेबॉरेटरी और थोड़ी सी फ़नी महारत से आप ये बीज आसानी से तैयार कर सकते हैं। बीज की तैयारी के इस तरीके को टिश्यू कल्चर कहते हैं। आइए हम आपको ये तरीका बताते हैं। खुम्बी के बीज की तैयारी के लिए 1 लीटर पानी, 20 ग्राम एगर, 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 20 ग्राम माल्ट एक्सट्रैक्ट और 1 ग्राम पेप्टोन की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें इसमें मिला दें। बीस ग्राम एगर, 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 20 ग्राम माल्ट एक्सट्रैक्ट और 1 ग्राम पेप्टोन पानी में मिला दें। इसको मिक्स करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम हॉट प्लेट कहते हैं। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर रखें। सौ डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर इसको 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। जो मीडिया हम तैयार करते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के खुदबीनी जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि इस कल्चर को ख़राब कर सकते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी होता है और इनके ख़ात्मे के अमल को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिलाइज करने के लिए आप फ्लॉस को कॉटन प्लग या किसी और चीज़ से अच्छी तरह से बंद कर दें। स्टेरिलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव इस्तेमाल करते हैं। इस मीडिया को ऑटोक्लेव में रख दीजिए। ऑटोक्लेव को अच्छी तरह से बंद कर दें। 15 पाउंड प्रेशर डेवलप होने पर आमेज़े को ऑटोक्लेव में 30 मिनट के लिए रखा जाता है। इस दौरान इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऑटोक्लेव से मीडिया को निकालने के बाद इसको पहले से स्टरलाइज शुदा पेट्री डिशेस में डाला जाता है और इस सारे अमल को लेमिनार फ्लो चैम्बर में किया जाता है जिससे कि जरासीम से बिल्कुल महफूज रखा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपने पेट्री डिशेस में मीडिया को कैसे डालना है। इस अमल को पोरिंग कहते हैं। पेट्री डिशेस को थोड़ा सा ढक्कन हटाकर उसमें मीडिया पोर करें। स्पॉन प्रोडक्शन के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। वैसे तो टिश्यू कल्चर के लिए आप खुम्बी का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि खुम्बी का तने का हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। इस मकसद के लिए कोई अच्छी ताज़ा किस्म की खुम्बी लें और उसका स्टेम पोर्शन काट लीजिए। उसके बाद इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटें। बाहर के हिस्से में कंटेमिनेशन का खदशा है, इस वजह से हम इसके अंदरूनी हिस्से से कोई सा भी पीस लेकर
इसको टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मीडिया पहले से तैयार किया था हमने और इसमें हमने मशरूम का ये पोर्शन इसमें डाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने लेमिनार फ्लो चैम्बर में इनॉकुलेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद हम पेट्री डिशेस को इंक्यूबेटर में मुंतकिल करेंगे। पेट्री डिशेस को इंक्यूबेटर में 7 से 10 दिन के लिए रखा जाता है और इस दौरान इंक्यूबेटर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस वक्त ये हमारे पास एक तैयार शुदा कल्चर है। एक हफ्ते के बाद हमारे पास ये कल्चर तैयार हो जाता है और जिसको हम बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम का प्योर कल्चर हासिल करने के बाद बड़ी मिकदार में इसका स्पॉन बनाने के लिए हम इसे मुख्तलिफ किस्म की ज़री अजनास मसलन गंदम, जवार और बाजरा वगैरह पर मुंतकिल करते हैं। इस मकसद के लिए गंदम के दानों को रात भर पानी में भिगोकर 15 मिनट उबालने के बाद हमने फैन ड्राई कर लिया है। अब हम इन दानों को पहले से साफ शुदा बोतलों या फ्लास्क में भरेंगे। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि गंदम के अलावा जवार या बाजरा या जो भी ज़री जिन्स आपको मुयस्सर हो आप इसमें डाल सकते हैं। कॉटन के प्लग से इसको बंद कर लीजिए। फ्लास्क भी का तने का हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। इस मकसद के लिए कोई अच्छी ताज़ा किस्म की खुम्बी लें और उसका स्टेम पोर्शन काट लीजिए। उसके बाद इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटें। बाहर के हिस्से में कंटेमिनेशन का खदशा है, इस वजह से हम इसके अंदरूनी हिस्से से कोई सा भी पीस लेकर इसको टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मीडिया पहले से तैयार किया था हमने और इसमें हमने मशरूम का ये पोर्शन इसमें डाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने लेमिनार फ्लो चैम्बर में इनॉकुलेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद हम पेट्री डिशेस को इंक्यूबेटर में मुंतकिल करेंगे। पेट्री डिशेस को इंक्यूबेटर में 7 से 10 दिन के लिए रखा जाता है और इस दौरान इंक्यूबेटर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस वक्त ये हमारे पास एक तैयार शुदा कल्चर है। एक हफ्ते के बाद हमारे पास ये कल्चर तैयार हो जाता है और जिसको हम बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम का प्योर कल्चर हासिल करने के बाद बड़ी मिकदार में इसका स्पॉन बनाने के लिए हम इसे मुख्तलिफ किस्म की ज़री अजनास मसलन गंदम, जवार और बाजरा वगैरह पर मुंतकिल करते हैं। इस मकसद के लिए गंदम के दानों को रात भर पानी में भिगोकर 15 मिनट उबालने के बाद हमने फैन ड्राई कर लिया है। अब हम इन दानों को पहले से साफ शुदा बोतलों या फ्लास्क में भरेंगे। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि गंदम के अलावा जवार या बाजरा या जो भी ज़री जिन्स आपको मुयस्सर हो आप इसमें डाल सकते हैं। कॉटन के प्लग से इसको बंद कर लीजिए। फ्लास्क में दानों को भरने के बाद
हम इसे ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर लेते हैं। इंक्यूबेटर में 7 से 10 दिन तक रखने के बाद मशरूम का प्योर कल्चर तैयार है। अब हम इस कल्चर को दानों में मुंतकिल करेंगे। इस मकसद के लिए इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। अब इन टुकड़ों को हम दानों में मुंतकिल करेंगे। इन फ्लास्क को हमने पहले से स्टरलाइज कर लिया है। इन फ्लास्क को 7 से 10 दिन के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। दिन के बाद ये स्पॉन तैयार है। अब आप इसे मशरूम की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री में खुम्बियों का बीज यानी स्पॉन तैयार करने के बाद इसको कंपोस्ट में मिला दिया जाता है। 250 ग्राम स्पॉन 8 से 10 थैलों के लिए काफी होता है। बीज मिलाने के बाद इन थैलों को ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां पर इसकी काश्त के लिए मुनासिब नमी और मौजू दर्जे हरारत की जरूरत होती है, और इसी वजह से खुम्बी की काश्त दूसरी फसलों की तरह खुली फजा में नहीं हो सकती, बल्कि कमरों के अंदर ही मुमकिन है और घरेलू सनत का दर्जा रखती है। इस मकसद के लिए छोटे पैमाने पर एंगल आयरन की मदद से छोटी छोटी झोंपड़ियां या कमरे बनाए जाते हैं और चारों तरफ पॉलिथीन शीट लपेट दी जाती है। फर्श पर रेत बिछाई जाती है। वक्फे वक्फे से फर्श पर पानी छिड़कते रहना चाहिए ताकि कमरे की नमी बरकरार रह सके। एंगल आयरन की जगह आप बांसों की मदद से भी कमरे तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ ज्यादा सरमाया हो तो आप खुम्बी के कारोबार को बाकायदा जरिया मुआश बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में एक मशरूम फार्म के मालिक की राय सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है। जहाँ तक मेरी तालीमी काबिलियत का ताल्लुक है, मैंने 1986 में एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद से आज तक मैं मुलाजमत की तगोदौ में ही लगा रहा, मगर पाकिस्तान में मुलाजमत ना मिलने की वजह से मैंने अपना ही एक कारोबार शुरू किया जिसको हम मशरूम फार्मिंग कहते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कंपोस्ट से भरे हुए शेल्फों में बीज स्पॉन मिलाए जा रहे हैं। बीज मिलाने के बाद बेड्स पर पॉलीथीन शीट फैला दी जाती है। इस तरह बेड्स की नमी बरकरार रहती है। बीज मिलाने के 15 दिन के बाद इस शीट को हटा दिया जाता है और बारीक मिट्टी की तह बिछा दी जाती है। इस अमल को केसिंग कहते हैं। केसिंग के तकरीबन 30 दिनों के बाद खुम्बी निकलने लगती है, यानी इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। नाजरीन, आप इन बेड्स में सफेद सफेद धागे देख रहे हैं। ये हैं खुम्बी के माइसीलियम जो सारे बेड्स में फैले हुए हैं। यही माइसीलियम बाद में बेड्स की ऊपर की सतह से उभरना शुरू हो जाते हैं जो पिन हेड से मुशाबे होते हैं, और चंद दिनों में ये मटर के दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और 5-6 दिनों में मुकम्मल खुम्बियां या मशरूम बन जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद खुम्बी की पिकिंग का मरहला आता है। खुम्बी की पिकिंग के लिए सबसे पहले खुम्बी को लट्टू की तरह थोड़ा सा घुमाया जाता है। इस तरह खुम्बी आसानी से बेड से निकल आती है और किसी तेज चाकू से जड़ का हिस्सा काट लिया जाता है। इसके बाद साफ बर्तन में या ट्रे में रख दिया जाता है। जड़ का हिस्सा अलहदा करने के बाद खुम्बियों का वजन किया जाता है और छोटी छोटी ट्रे में पैक करते हैं। पैक करने के दौरान
اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ داغ یا دھبوں والی کھمبیاں پیک نہ کی جائیں۔ صاف اور اچھی کھمبیاں ٹرے میں پیک کرنے کے بعد خوبصورت لیبل لگائے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ مشروم اعلیٰ درجے کی سبزی ہونے کے ساتھ ساتھ لحمیات سے بھی بھرپور ہیں۔ ان میں نشاستہ اور روغنیات بہت کم مقدار میں ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر، موٹاپا اور دل کے مریضوں کے لیے نہایت مفید اور متوازن غذا ہے۔ لحمیات کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں جہاں مویشیوں، مرغیوں، انڈوں اور مچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کھمبی کی کاشت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ماہر کیا کہتے ہیں۔ مشروم ایک ایسی فصل ہے جو کہ پروٹین یعنی لحمیات سے بھرپور ہے اور اس کی کاشت بآسانی ہو سکتی ہے۔ ایسے پرانے گھروں میں یا کچے گھروں میں یا پرانے پولٹری فارم میں کامیابی کے ساتھ کاشت ہو سکتی ہے، اور یہ پرٹیکولرلی ذیابیطس، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید غذا ہے۔ اور تقریباً ہم نے 6-7 سال پہلے مشروم پر کام شروع کیا تھا، اور ہم اب اس قابل ہیں کہ تقریباً 4 مشروم کی اقسام، جس میں بٹن مشروم، آسٹر مشروم، چائنیز مشروم اور شاہ بلوط کی ٹیکنالوجی کا پیکج ہم نے تیار کر لیا ہے، اور کوئی بھی فارمر، کوئی بھی انٹرسٹڈ بندہ ان پر عمل کر کے ان مشروم کو اگا سکتا ہے۔ کھمبیاں خوش ذائقہ اور اعلیٰ غذا ہونے کے ناطے دنیا بھر میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ ویسے تو کھمبیوں سے مختلف قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، مثلاً کھمبی کا پلاؤ، کھمبی کا رائتا اور چائنیز مشروم سوپ زیادہ مشہور ہیں، جبکہ بیف مشروم کری بھی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کھمبیوں کی کاشت اگرچہ دوسری فصلوں کی نسبت مختلف ہے، لیکن دوسری فصلوں کی نسبت آسانی سے کاشت بھی کی جا سکتی ہے اور کم سرمائے سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، اور یقیناً ایک نفع بخش زرعی کاروبار کا درجہ رکھتی ہے۔